بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام کلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم بمن بسر سامام کبن دیمن کا امام، یا غوث اعظم بمن بسر سامام کبن دیمن کا امام، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم بمن بسر سامام کبن دیمن کا، یا غوث اعظم بمن بسر سامام کبن دیمن کا امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر پیران میر میران شاہ شاہانِ بینظیر، پیر پیران میر میران شاہ شاہانِ بینظیر، حافظ روح و قلم استادگان دستگی، پیر پیران میر میران شاہ شاہانِ بینظیر، حافظ روح و قلم استادگان دستگی، سگے درگاہ میرا شوج خواہی کل ربانی، سگے درگاہ میرا شوج خواہی کل ربانی، کہ بس شیران شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، جے تو قرب کہانی دوڑیں میاں محمد صاحب ساتھ ہونا ہے، اے سائل، اے منگنے والے، اے مریض، اے طالب علم، جے تو قرب کہانی دوڑیں بندہ سب میرا دا، جے تو قرب کہانی دوڑیں بندہ سب میرا دا، شیراں اُتے شرطاں دا کتا تو پیر پیراں دا، شیراں اُتے شرطاں دا، شیراں اُتے شرطاں دا کتا پیر پیراں دا، کتے تو درگاہ ماندے شیراں اُتے پاہے۔ سب کو ایک طرح نہ سمجھیں، اللہ والے بھی ہیں، بڑی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، اور میاں صاحب نے سامنا ہے وہ جڑی فقیر دے حال کو مدے گزرے بندنگ ہوئی۔ میاں محمد صاحب کھنشی والے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، اے سامع، اے سننے والے، اے مریض، تو جڑی فقیراں دے حال کو مدے گزرے وچ بندنگ ہوئی۔ بندنگ ہے شیر کی، چیتے کی۔ ہو سکتا ہے وہ تم ان سب کو گدڑ سمجھتے ہو، ان میں شیر بھی بیٹھا ہو، تم سب لوگوں کو ایک طرح سے سمجھتے ہو، کوئی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کوئی غوث ہوتے ہیں، کوئی کتب ہوتے ہیں، کوئی کلندر ہوتے ہیں، کوئی مجذوب ہوتے ہیں، کوئی مجذوب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنی مخلوق کا کاروبار جو ہے اللہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ سب فراد ہے، یہ سب بیکار چیز ہے، پیر ماننا، فقیر ماننا، بزرگ ماننا۔ بابا جن کو اللہ نے بزرگ تسلیم کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ خوف نہ ڈرے، خبردار خبردار ہے سامنے سننے والوں، اللہ خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں دنیا داروں کو ایک سارا نقصان ہو گیا، کوئی بلڈنگ گر پڑی، کوئی گاڑی ٹوٹ گئی، کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی روپیوں کا نقصان ہو گیا تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ بات مانتے ہیں، اللہ خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ صرف آپ اتنا کریں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، مجاہدین اسلام ہیں، آنکھوں والے ہیں، سارے بصیرت ہیں، سارے نظر ہیں، ان کے حکم کی تعبیر کریں۔ ایک کام یہ کریں کہ ان کے حکم پر چلیں، دوسرا ان کا احترام کریں، تیسرا ان کی خدمت کریں، چوتھا ان کے پاس بیٹھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ آنکھ کھولیں گے نا
تو سارے تمہارے سب کام سیدھے کر دیں گے. میں کھڑی سی گیا وہاں پر پیر میری صاحب کے دربار پر گولنا شریف گیا. وہاں پر کچھ اشعار مولانا ضرور رحمۃ اللہ کے لکھے تھے. مولانا صاحب بہت بڑے بزرگ ہوئے اور مولانا صاحب نے اولیاء کرام کی بڑی تعریف کی ہے. اور فرماتے ہیں یک زمانہ سوچتے با اولیاء، یک زمانہ سوچتے با اولیاء، اللہ کے ولیوں کے پاس ایک ساتھ بیٹھنا، ان کی صبر کرنی، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی زیارت کرنی، ان کی اطاعت کرنی، ان کے منع کرنا. مولانا صاحب کہیں یک زمانہ سوچتے با اولیاء، اولیاء کے ساتھ ایک سال صبر کرنی. پھر ذرا بھیڑیا، وہ عبادت 100 سال کی سے بہتر ہے اللہ کے ولی کے پاس ایک ساتھ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آگے فرماتے ہیں مولانا صاحب فرماتے ہیں، وہ میں بات بیان کرنے لگا ہوں کہ میں گولنا شریف گیا تو وہاں پر کیا واقعہ ہوا. وہ کون سے شاہ تھے ان میں دیکھ، وہ کہتے ہیں اولیاء حق قدر ازلہ. مولانا صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مسند شریف میں اولیاء حق قدر ازلہ، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی طرف سے اولیاء حق قدر ازلہ تیر جسا بارو گردان دے گا. اللہ کا ولی جو ہے وہ تیر جو نکلا ہوا کمان سے اس کو راستے سے واپس لا سکتے ہیں. اس بات کو میاں صاحب نے ترجمہ کیا، فرمایا ولی اللہ دے تک لیندے کیا درود نہ سیکھوں، ولی اللہ دے تک لیندے کیا درود نہ سیکھوں، رستے دے جو موڑ نہ گولی کے گئی میں رکوں. آگے آپا نے میاں صاحب فرماتے ہیں ولی اللہ جو ہے دنیا سے گزر جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگنے سے انہوں نے جو دنیا میں زندگی بسر کی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کے اطاعت کے لیے ہے، اللہ کی عبادت میں کیا ہے، بزرگوں کو عزم میں کیا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے. وہ میں بات کرنا تھا کہ میں گیا پیر میری صاحب کے مزار پر. وہاں پر وہ کمال یہ ہے، مجھے بتایا گیا کہ پیر میری صاحب کے مزار پر جو ایک پتھر لگا ہے، پہلے قرآن پڑھا گیا، پھر ایک پتھر لگایا گیا، پہلے قرآن پڑھا گیا، پھر دوسرا پتھر لگا، پہلے قرآن پڑھا گیا، پھر تیسرا پتھر. ہر پتھر پر ایک قرآن ختم کیا گیا ہے. یہ پیر میری صاحب کے مزار پر جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ ہر پتھر پر ایک ایک قرآن ختم کیا گیا ہے. وہاں لکھا گیا تھا، وہ 6 اشعار لکھے تھے بزرگوں کی تعلیم میں. فرماتے اولیاء حق قدر ازلہ تیر جسا بازو گردان ذرا. تو تیر جو کمان سے نکل گیا ہے اس کو بھی واپس لا سکتے ہیں. آگے پتا کیا لکھتے مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وہاں پر جو 6 لکھا تھے مولانا صاحب لکھتے ہیں آنا کے بسدھیلا نظر بکمن. مولانا صاحب فرماتے ہیں بس شیر میں آنا کے بسدھیلا نظر بکمن سگرا ولی کرنا مگسرا مکمن. اللہ کے ولی جو یہ شعر وہاں پر لکھا ہوا اور یہ بھی شعر ہے. ولیوں کی تاریخ میں وہ مولانا صاحب کے وہاں اشعار لکھے ہوئے اوپر دیوار پر لکھے ہوئے ہیں پیر میری صاحب کے مزار کے قریب اوپر. وہ لکھتے ہیں آنا کے بس ڈھیلا نظر باکنم
सगरा वली कमन व मगसलाम। अल्लाह के वली जो है ये बड़ी मुश्किल से आंख खोलते हैं, और जब आंख खोलते हैं तो क्या करते हैं, कुत्ते को वली बना देते हैं, कुत्ते को वली बनाते हैं। इंसान का वली बनाना ये उनके नजदीक रहना बिल्कुल नहीं है। जो कुत्ते को वली बना सकते हैं वो बंदे को वली नहीं बना सकते। ये देखें कुरान में साबकाफ का जिक्र है। अब ये ना कहें कि कलंदर साहब यूं ही छिड़काते हैं, कलंदर साहब छिड़काते ही फरमाते हैं। कलंदर साहब फरमाते हैं, अल्लाह के दोस्तों की बातें फरमाते हैं। यही मतलब यही है, सच हो झूठ न हो, हदायत हो गुमराही न हो, रहमत हो शफकत हो बरकत हो कामयाबी हो, अल्लाह के नियामत का हासिल करना हो। लेकिन इसका एक तरीका है। वो लोग जो मुनकर लोग हैं, वो लोग जो बेअदब लोग हैं, वो लोग जो बुजुर्गों के गुस्ताख लोग हैं, वो खुद भी जन्नत में जाते हैं और लोगों को और लोगों को भी जन्नत में ले जाते हैं। मैंने कुरान में पढ़ा है क़यामत का दिन होगा, क़यामत में कुरान में है कि कुछ लोग अपने अंगनों को काटते होंगे। कुछ लोग कुरान में है अपनी अंगनों को काटते होंगे, अंगलियों को काटते होंगे, और क्या बोलते होंगे, क़यामत के दिन की बात अल्लाह बयान करते हैं। अभी क़यामत नहीं आई है, क़यामत के जो है ना दौर दौरा, ये अमान अहमद खान साहब ने अपनी किताब में लिखा है। ये 20वीं सदी हिजरी में ये क़यामत आई। अभी नाज़िम 500 साल रहते हैं। अल्लाह वाले जानते हैं। ये बात भी आपको आज आपको चुस्की ज़रा लगाएंगे, क़यामत की क़यामत कब होगी, किस तरह होगी, क्या होगा। तो वो बयान करते हैं कि अगर जो फिर ना अपना वो जो अशार लिखे हुए थे वहाँ अजल मौलाना रूम अगर मौलवी हल्की ना शुद्ध मौलाना रूम क्या फरमाते हैं मौलाना साहब, वो फरमाते हैं मैं मौलवी था, छड़ा मौलवी था, मसाइल बयान करता था जाहिर तौर पर, बातिन तौर पर नहीं। ना मेरा दिल रोशन था, ना मेरी आंखें रोशन थी, ना मेरे अंदर रोशन था, ना मेरे शहबाज रोशन थे, ना कोई मकामात थे बुलंद। तो फरमाते हैं अल्लाह के वली से मुलाकात हुई, शाह शमस तबरेज़ से मुलाकात हुई, शाह शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह से मुलाकात हुई। उनके बंदगी बताएंगे शमस तबरेज़ कहाँ से आए, क्या क्या हुआ, किन किन से मुकाबला हुआ, मुल्तान में किन किन से मुकाबला हुआ, क्या क्या उन्होंने किया, और मौलाना रजू साहब को किस तरह अनाज किया। आस्ता आस्ता कम चलेगा। तो वो जो है ना मौलवी साहब, वो फरमाते हैं मौलवी हरगिज़ ना शुद्ध। क्या फरमाते हैं, मैं मौलवी साहब में हरगिज़ मौलाना ना बन सकता। अगर मुझे पीर कामल, अगर मुझे शाह शमस तबरेज़ी मुझे हासिल न होते, उनकी तवज्जो मुबारक मुझ पर न होती, तो मैं मौलाना रूम ना बनता। मैं मुल्ला 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 ही रहता। मुल्ला और जा अल्लाह का फकीर, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अताअ बंदा, ये बनना बहुत मुश्किल बात है। जो खुदा के बंदे हैं वो कहा नामा साहब ने बनाया, खुदा के बंदे तो यूं है नाखो, खुदा के बंदे तो यूं है नाखो बना में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो यूं है नाखो बनों में फिरते हैं मारे में, बंद कर जंगल को। और अल्लाह साहब बनाते खुदा के बंदे तो यूं है लाखों बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं बंदा बनूंगा उसका देखकर जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। जो अल्लाह के बंदे हैं उनका देखना हो रहा है,
उनका सुनना हो रहा है, उनका बोलना हो रहा है, उनका पकड़ना हो रहा है, उनका कहना हो रहा है, उनका चलना हो रहा है, उनका सोना हो रहा है, उनका जागना हो रहा है, अल्लाह के बंदे। ये नहीं है चुका ऊपर लायला भिजू ए लेला, ऊपर लायला भिजू ए लेला। जो कहा कटी से ऊपर से ही कहा, जुबानी कहा, जो असल बात ही अमल की है। आप थोड़ी बात पर अमल करेंगे, आपका एक अच्छा मकाम होगा। हजारों लाखों मौजूद है जो मुखालफत करते थे पाकिस्तान में बने। ये हुआ ना ये मौलाना मौदूदी वो कहता था काजी साहब मुसलमान ही है। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने काजी साहब की मुखालफत की है, कुछ लोग हैं अल्लामा साहब की मुखालफत की है। अल्लामा साहब का चेक में उनकी जुबान में बात से अल्लामा फरमाते हैं, ये कुछ लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब चले गए, वलायत चले गए, अंग्रेजों में रहे, उन्होंने अपने दीन को बेच दिया, अपने दीन को फरोख्त कर दिया, उन्होंने अपनी जो इस्लाम का तौर तरीका था उसको बदल दिया। वो इस बात को अपने शेर में ध्यान फरमाते हैं मुझको तो सिखा दिया अफरंग, कहते हैं ये अंग्रेज, मुझको तो सिखा दिया अफरंग ने जिंदगी कहते हैं जो कुफर है, मुझको तो सिखा दिया अफरंग ने जिंदगी। ऐ मुसलमान को लोगों, तुम मेरी मुखालफत करते, तुमने अल्लामा इकबाल साहब जो है वो अंग्रेजों की पैरवी करते हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं नगमा कदा व मन कदा, अल्लामा साहब फरमाते हैं नगमा कदा व मन कदा, वो मैं कौन, मेरा मकाम क्या है? मेरा मकाम मैं कलंदे वक्त हूँ, मैं कुत्ते वक्त हूँ। अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया मेरे मकाम का फकीर 800 साल में पैदा नहीं हुआ है। जो अल्लाह ने मुझे शान अता किया है, जो मकाम अता किया है, जो फकर सुना दिया है, जो नबी पाक की मोहब्बत इश्क अता किया है, वो 800 साल में उसके मुकाबले में फकीर पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह साहब फरमाते हैं माते पासा मन, अल्लामा साहब फरमाते हैं पासा मन शेरे मन बखानमा दाजिया बन देखो है। अल्लामा साहब फरमाते हैं मेरे बाद लोग आएंगे, मेरे शार को पढ़ेंगे और मालूम करेंगे, महसूस करेंगे कि अल्लाह ने एक वली और अल्लाह के कलंदर मन नबी पाक के आशिक है, दुनिया की जहान को बंद कर चलेगी। फरमाते हैं नगमा कदा व मन कदा, सादे सुखन बहा नहीं, सुए कतार ने कसम, सुए कतार ने कसम, नका बेज मामला। मैं कहा कलंदर मन कुत्ते वक्त, बुजुर्ग के वक्त, वली वक्त और वली भी कामल अकमल किस्म के। मैं कहा और मेरे इशार के नाम क्या है, वो कहते हैं ये तो एक बहाना है नबी पाक की उम्मत को लाइन पर लाने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए। फरमाते हैं नगमा का जब मन का दास सादे सुगंध आना ही, सुए का तार में कसम, सुए का तार में कसम, नका बेज मामला। ये एक उठनी है जो बगाल को नकेल के है। ये जो मुसलमान है ये बागी हो चुके, अक्सर सारे नहीं, अल्लाह वाले भी है ना। अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम भी चलाना है ना। सब एक ही रंग के बंदे हो जाए, सारे अंधे हो जाएं, सारे बहरे हो जाएं, अकल से फारुग हो जाए, इल्म से फारुग हो जाए, अदब से फारुग हो जाए, अकीदे से फारुग हो जाए, तब फिर मामला नहीं चलता। आगे सुने अल्लामा साहब का फरमान। अल्लामा साहब फरमाते हैं नगाए फक्र में शान सकंदरी किया है। अल्लामा साहब फरमाते हैं नगाए फक्र में शान सकंदरी किया है। ये बात ही क्या है? वो ये दारा कौन है? वो ये सिकंदर कौन है? अल्लामा साहब ने कहा दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर हुआ।
अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं मध्य कलंदर अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के आशिक, नबी पाक के आशिक, दीन इस्लाम के आशिक, कुरान के आशिक, मजहब इस्लाम के आशिक, फरमाते हैं दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर हुआ, और जिसकी फकीरी में वो असदुल्लाई, वो बंदा जिसके अंदर जनाब एलियन खुदा शेर खुदा की इश्क की फकर की खुशबू मौजूद है, वो सिकंदर और दारा से अफजल आला है। ये जो अल्लाह के दोस्त है ना, अल्लाह के दोस्त इनको देखा करे, इनके पास पैसा करें, अल्लाह के वलियों के पास पैसा करें, उनकी अताअत करें, उनकी खिदमत करें, उनसे अदब सीखे, उनसे इल्म सीखे, उनसे इश्क सीखे, उनसे प्यार सीखे, उनसे मजहब इस्लाम सीखे, कुरान सीखे, हदीस सीखे, बुजुर्ग का इल्म सीखे। हाँ आगे मैं बयान करता हूँ। इमाम साहब फरमाते हैं नगाए फ़क्र में शान सिकंदरी किया है, बाद की जो गदा वो कैसी किया है, वो क्या बात सही है कि चंदा जमा किया, वो पैसे लिए मखलूक से, चंदा लेकर फिर अपनी बात सही चली। हमारा नगाए फ़क्र में शान सिकंदरी किया है, बाद की जो गदा हो, बाद की जो गदा हो वो कैसी क्या है, परमात्मा भूतों से तुझको अलामा साहब मानते हैं, भूतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी, भूतों से तुझको उम्मीदें, तू तो ख्वाहिशात का पिदारी है, तू खुदा ख्वाहिशात के पीछे चला, खुदा को ख्वाहिशात को खुदा बना किया है, कुरान में भी है। कुछ लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाए बैठे हैं, खुदा के हुक्म तो अमीर नहीं करते, अपने ख्वाहिशात की ताबेदारी करते हैं। वो अल्लामा साहब मानते हैं भूतों से तुझको उम्मीदें, ऐसा मेरा सुनने वाले ए नाम के मुसलमान, नाम के मुसलमान, असल मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है बाबा जी, और असल मुसलमान की ज़ियारत करनी ये भी बड़ी बबरकत चीज़ है। अल्लाह के दोस्तों को देखना, उनकी ज़ियारत करनी, उनकी खिदमत करनी, ये बहुत बड़ा मुकाम रखता है बाबा जी। आप देखें नबी पाक के जो सहाबा कराम हुए, नबी पाक के जो सहाबा कराम हुए, सभी वो होते हैं जिन्होंने बहसीत मुसलमान के नबी पाक की ज़ियारत की हो, नबी पाक की ज़ियारत की हो, बहसीत मुसलमान के इस्लाम की हालत में नबी पाक की ज़ियारत की हो, वो सभी होता है। अब कोई अगर ये चाहे सारी दुनिया के आलम, बुजुर्ग, गौस, कुतुब, कलंदर, आलम, फाजल, हकीम, डॉक्टर, दादा, बड़े बड़े फले खान, बड़े अमीर, बड़ी शानदार, वो अगर चाहे कि नबी पाक के एक असहाबी का एक बार मुबारक पैदा करे, नबी पाक के असहाबी का एक बाल पैदा करे, वो एक बाल असहाबी का एक बाल मुबारक जब वो पैदा नहीं कर सकते, वो तो बड़ी बात है, असहाबी पैदा करना बड़ी गल है। हाँ आगे लामा साहब का शेर कहता हूँ, वो बात है भूतों से तुझको उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी, और बता तो मुझे प्रसाद से काफिरी क्या है, खुदा को की तरफ रजू ना करना, अल्लाह की इताअत ना करना, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी ना करनी, अपनी चुराग रखनी, अपनी फने खानी करनी, मैं बहुत बड़ा लायक हूँ जी, मैं बहुत बड़ा सेवा हूँ जी, नहीं बड़ी जरूरत था जी, मेरे बैंक बैलेंस हैं, मेरी बुजुर्गा हैं, मेरी ये बहुत काल हैं, मेरे बड़ी बरादरी है, और बाबा जी ये सब बुत हैं, ये दुनिया के बुत हैं जिनके पीछे इंसान जाता है और अपनी जो रूहानी को उसको वो कम करता है। अलामा साहब का फरमान सुने, माते
किससे नहीं है तमन्ना छवि लेकर, क्या फरमाते हैं नाना साहब, किससे नहीं है तमन्ना छवि लेकर। और बाबा बिल्कुल कोशिश नहीं है कि ख्याल है मैं चौधरी बनूं, मैं लीडर बनूं, मैं वज़ीर आज़म बनूं, मैं बड़ा फने खान बनूं, मैं नवाज शरीफ बनूं, मैं डॉक्टर फरमान शरीफ बनूं। ओ बाबा जी जबान बातों से बड़ा शरीफ नहीं बनता। अल्लामा साहब मैं अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत भी, अमल से बातों से नहीं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। आप जन्नती वाला काम करेंगे आप जन्नती हो जाएंगे, आप जहन्नमी वाला काम करेंगे आप जहन्नमी हो जाएंगे। ये नहीं काम करें शैतानों वाले बेईमानों वाले गलत काम करें, ताबीर रखें मैं जी ताकत जन्नत में भंगड़े डालूंगा ना। और मैं पिछली दफा बोला था किस ने जाना है जन्नत ने कहा अल्लाह ने कहा, बिलो ने कहा नहीं, बिलो ने कहा तो बिलो ही पढ़ दो, बिलो ने कहा तो बिलो नहीं कहा, जिसकी आप इख्तिसार करेंगे, जिससे आप मोहब्बत, नबी पाक का फरमान है मन अहबाबकुम वो मोमिनुन, क्या मैं दो जिसे नबी पाक की अशात फरमाते हो बरकत के तौर। और सब कुछ सरकार है, हमारे सब कुछ सरकार है, हमारे सब कुछ जनाब गौस पाक हैं, रहनुमा सरकार है, हमको रस्सा बताना सरकार है, हमारे मददगार नबी पाक है, ना गौस पाक है, बुजुर्गान दीन है और ये करम है। और कुछ लोग हैं कि हमने ये वही क्या कर सकते हो, और बुरी जी तुम्हारी कर सकती है, तुम्हें पूरी रात चुका सकती है, तुम्हें लाइन पर राइट लटका सकती है, तो अल्लाह को बुरी नहीं कर सकते। हाँ आगे सुने, अल्लामा साहब फरमाते हैं किसे नहीं है तमन्ना छवि लेकर, दिल की मौत हो जिसमें वो छवि क्या, वो क्या पर चुटवाट है, वो क्या बढ़ाई है। किसी नहीं है तमन्ना छवि लेकर, दिल की मौत हो जिसमें इंसान का दिल जमीर मुर्दा होता है, उसके ख्यालात मुर्दा होते हैं, उसकी अकीदे गलत होते हैं, तो वो क्या फन्ने खानी है। आगे फरमाते हैं किससे नहीं है तमन्ना छवि लेकर, दिल की मौत हो जिसने वो छवि क्या, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नाम है जी, मुझे बता तुम सही कर। एक बार रमा साहब आ गए मुगल में, तो मैंने उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। हाँ उठो क्या बुलाते हैं, जगाओ मुसलमान को, जगाओ मुसलमान का अंदाज होता है। अपने गवानियों का ख्याल रखें, मुसलमानों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, साहिब इस्लाम का ख्याल रखें, मोहम्मद का ख्याल रखें, मुसलमान का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। आप जब मुसलमानों की मदद करेंगे, मोहम्मदों की मदद करेंगे, अल्लाह वालों की सपोर्ट करेंगे, अल्लाह वालों की प्रोटेक्शन करेंगे, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे, मेरी बात राजी होंगे। ये बनना चंगा है, मेरी बात का फरमान है, वरना तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और फिर अब मेरी बात होना कि अब उनका दिन होगा जिन लोगों ने मुसलमानों की सपोर्ट की होगी, मुसलमानों की मदद की होगी, और उन वहाँ पर